عمران خان کی وجہ سے اسکول اور ہسپتال کے راستے بند ہیں۔ عمران خان جو پیسہ راستے بند کرنے اور جلاؤ گھیراؤ میں خرچ کر رہے ہیں وہ سیلاب زدگان کی بحالی پر لگا دیتے۔ جو پیسہ اسکول اور ہسپتال بند کرنے پر لگا رہے ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسکول اور ہسپتال بنانے پر لگا دیتے۔ عمران خان کی وجہ سے ملک میں فساد، انتشار اور نفرت پھیلی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے حکومت کا سود سے متعلق شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے اپیلیں واپس لینے کا اعلان۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ملک میں اسلامی بینکاری نظام کو آگے بڑھائیں گے۔ سود سے پاک بینکنگ نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار۔ سود کے خاتمے کے فیصلے پر عمل درآمد اور اپیلیں واپس لینے کا حکومتی فیصلہ خوش آئند ہے۔ اجتماعی دانش سے آگے بڑھتے ہوئے معاشی مسائل بھی حل کریں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قوم کو سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے خوشخبری سنا دی۔ ملک میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں۔ سودی نظام کے خاتمے کی خبر سے مسلمانوں میں خوشی کی خبر دوڑ گئی۔ سودی نظام کے خاتمے کی کوششوں پر حکومت کے شکر گزار ہیں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف الفالح کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی عبور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزارت مواصلات اور پوسٹل کا بڑا اقدام۔ ملک بھر کے تمام ڈاکیہ حضرات کو موٹر سائیکل دینے کا فیصلہ۔ پاکستان پوسٹ اسلام آباد کے ڈاکیہ حضرات کو آج موٹر سائیکلز فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان پوسٹ کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 415 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 42,680 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ پاکستان کے ساتھ دوستی کو چین کے عوام خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کی اعلیٰ مثال ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے عوامی خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ دونوں ملکوں کے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چین کی عوامی دوستی ایسوسی ایشن کے صدر لنگ سنگچیان۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ زرعی تعاون کے نام پر اسرائیل کو مقبوضہ وادی میں مکمل رسائی دے دی گئی۔ حریت قیادت کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مزید بڑھنے کا اندیشہ۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی 210 اور ڈیموکریٹس کی 192 نشستیں۔ سینٹ میں سخت مقابلہ۔ ڈیموکریٹس کی 49 اور ریپبلکن کی 48 نشستوں پر کامیابی۔ کئی پاکستانی نژاد بھی کامیاب۔ پاکستانی نژاد سلمان بھوجانی ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب۔ علی سجاد تاج مسلسل تیسری بار آرٹیشیا کے میئر منتخب ہو گئے۔ ہمارا ملک سلامتی کے حوالے سے بے یقینی سے دوچار ہے۔ ہماری فوج کو اس وقت کٹھن ذمہ داریوں کا سامنا ہے۔ فوج کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے اور جنگ کے لیے تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ سال 2027 تک ہمیں اپنی فوج کو دنیا کی بہترین عسکری صلاحیتوں کی حامل فوج بنانا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ۔ ٹویٹر کے بعد اب فیس بک کمپنی میٹا کا بھی ملازمین کو نکالنے کا اعلان۔ کمپنی کے 11,000 سے زائد ملازمین کو برطرف کیا جائے گا۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کو مہنگائی اور تیزی سے بڑھتے ہوئے شرح سود کے باعث مشکلات کا سامنا۔ موسم بہار کی طرح پت جھڑ کے موسم کا بھی اپنا لطف۔ خزاں کے آتے ہی ارد گرد کے ماحول میں سرخ، پیلے اور نارنجی رنگ بکھر گئے۔ رنگوں کی خوبصورتی سے محسوس ہونے کے لیے شہریوں نے باغات کا رخ کر لیا۔
T20 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में पाकिस्तान का मद्दे मुकाबिल कौन, फैसला आज होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत का एडिलेड में टाकरा होगा। मैच दिन 1 बजे से देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए मेलबर्न पहुंच गया। क्रिकेटर्स कल प्रैक्टिस सेशन करेंगे। शाहीनों ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आर्मी कप का फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इस वक्त मुल्क भर में इमरान खान की वजह से फसाद, इंतशार और नफरत फैली हुई है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान को पैसा रास्ते बंद करने और जलाओ घेराव में खर्च करने की बजाय सैलाब ज़दगान की बहाली पर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वो जो पैसा स्कूल और अस्पताल बंद करने पर लगा रहे हैं, इसको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल और अस्पताल बनाने पर लगाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये वो ढीठ और फिस्ताई शख्स है जिसने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर भी सियासत की। इमरान नियाज़ी ने 4 साल तक आवाम की रोटी, बिजली, गैस, दवाई और रोज़गार और सड़कें बंद की और आज भी ये सड़कें बंद कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामी बैंककारी के हवाले से वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें वापस लेने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुल्क में इस्लामी बैंककारी निज़ाम को आगे बढ़ाया जाएगा। तफसील के लिए देखिए राहिल अंसार की रिपोर्ट। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत और गवर्नर स्टेट बैंक की मुशावरत से वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपीलें वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक फैसला करने का मेयाद कुरान और सुन्नत है। हमारी तरजीह और जो हमारे लिए जो फैसलों करने का मेयार है वो कुरान और सुन्नत है। तो उसकी रोशनी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से स्टेट बैंक गवर्नर साहब की मशावरत से मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ कि हम स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेज़ी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें वो करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायश गाह पर भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JUI के सरबराह ने सूद से पाक बैंककारी निज़ाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह ऐलान करके कि वो सब अपीलें वापस ली जा रही हैं और हम बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग नहीं लड़ सकते, गैर सूदी निज़ाम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं और उसके लिए जो फ़ैसला अदालत ने किया है उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में ये एक बड़ा फैसला तस्वूर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमने ऐसा फैसला करने की कोशिश की है जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आए। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने गुज़श्ता रात सूदी निज़ाम के खात्मे के हवाले से खुशखबरी सुनाई है। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूदी निज़ाम के खात्मे की खबर से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूद एक ऐसी लानत है कि जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करार दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों का ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का खात्मा हो। गुज़श्ता रात ये कौम को खुशखबरी सुनाई
کہ سودی نظام کے خاتمے کے خلاف جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں ان کو واپس لیا جا رہا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تمام پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان کے علماء مشائخ کی طرف سے، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا، تمام حلیف جماعتوں کا اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس حوالے سے ایک اہم کردار ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور دیگر جو اکابرین ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی مثبت قدم حکومت اٹھائے گی، ملک بھر کے علماء مشائخ اس میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، ان کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا سود سے پاک بینکاری کی جانب اہم قدم، وفاقی شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے وفاقی حکومت کی جانب سے اس دیرینہ فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی صاحب سے۔ بہت شکریہ سر آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا اس اہم اقدام سے معیشت پر کیا اچھے اور مثبت اثرات پڑنے والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے گی تو جو اس کے انوارات اور برکات اور اس کی رحمتیں ہوں گی، ان کے بارے میں ذرا کوئی انسانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سود کے بارے میں جتنی وعیدیں آئی ہیں وہ تقریباً ہم سب جانتے ہیں۔ تو موجودہ حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں دائر کی گئی تھی ان کو واپس لینے کا جو کل اعلان کیا ہے، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے جو فیصلہ کیا جس کا اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے 75 سال کے بعد اس سودی نظام سے نجات کے لیے پہلا مثبت اور بہت ہی مستحسن قدم ہے۔ اس حوالے سے کام پہلے بھی ہو رہا ہے، لیکن جس طرح کل اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے اور میری خود بھی ان سے بات ہوئی ہے کہ اب وہ مزید اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اور تیزی کے ساتھ اس پر کام ہو، اور اس حوالے سے جو ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، راغب نعیمی صاحب ہیں اور اکابرین ہیں، تو اس کمیٹی پر بھی اب بڑی ذمہ داری ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے کہ وہ متبادل نظام تو موجود ہے اس کو پیش کرے، اور تاکہ ملک کے اندر مرحلہ وار یہ سلسلہ یہ نافذ ہو اور ملک کے اندر ایک جو ہے وہ فضا جو ہے سود کے خاتمے کے لیے پہلے سے موجود ہے، اور مسلمانان پاکستان اس کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس سے خوشی کی لہر آئی ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے، اور جب پاکستان کے اندر سے سودی نظام کے خاتمے کی طرف قدم بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے باقی دنیا میں بھی اثرات آئیں گے، اور پاکستان کی معیشت اور اقتصادی معاملات وہ بھی بہتر ہوں گے۔ تو یہ ایک مبارک اور ایک مستحسن قدم ہے جس پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، ان کی کابینہ، ان کے حلفاء اور وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ اس حوالے سے پاکستان کے علماء، مشائخ اور مذہبی قوتیں، سیاسی قوتیں جو ممکن تعاون ہوگا وہ حکومت کے ساتھ کریں گی۔ ہم عوام الناس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں آگے بڑھے اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس سود کی آمد سے جو ہے وہ پاکستان پاک ہو۔ ویسے بھی پاکستان کا آئین دستور کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے، اور اس سلسلہ میں پاکستان علماء کونسل اور اس کی حلیف جماعتیں، جمعیت علماء اسلام اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس کا خیر مقدم بھی کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت اہم کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और बाकी भी जो जो इस कार खैर में मुआविन बना है, अल्लाह करीम उसे जज़ा खैर अता फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से। सूदी निज़ाम से पाक बैंकारी निज़ाम यकीनन वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम कदम है और इसके मईशत और माशरत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी मईशत भी इस्तेकाम की जानिब गामजन है। आज कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। आगाज से अब तक 100 इंडेक्स में 515 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 42,784 पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि चीन और सऊदी अरब की जानिब से 13 अरब डॉलर की फराहमी के फैसले के मार्केट पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी कमी देखने में आ रही है। डॉलर मजीद 39 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए और 28 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। शुरका को आटा, दालें, चीनी, चावल और घी पर सब्सिडी की फराहमी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुस्तहिक तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए टारगेटेड और नॉन टारगेटेड अमूर से मुतालिक भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पसमानदा तबके को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती रिलीफ के अज़म का इयादा करते हुए कहा कि आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाद पहुँच गए हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा अपने सऊदी हम मनसब के हमराह पाक सऊदी सुप्रीम राबता काउंसिल की ज़ैली कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल-फालेह ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। दोनों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। बैरूनी ममालिक के साथ चीन की अवामी दोस्ती एसोसिएशन के सदर लिंग सोंगटियान की पाकिस्तान आमद CPA-FCC के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मुस्तहकम और बासलाहियत क़यादत अवामी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती को चीन के अवाम खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ CPC इजलास के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले आलमी रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की आला मिसाल है। I believe that under the strong leadership of the Pakistan government and that by the striving spirit, everybody very like to work very hard for this country, Pakistan people can surely realize the goal of getting out of poverty and achieve sustainable development sooner or later. And China will be stand together. I already seen the broad prospect for the future cooperation. Here the resources in terms of the human and natural resources are good enough, more than in China we have. But the human resources here also good enough and also young, very promising country. The first phase of the CPEC is ready. So now we will move to the second step, Ecuador. That's the main gate to open to the region, to the world for this country, not only for this country. तमाम आप सब जिन्होंने तालीम के इस सफ़र में पार्टिसिपेट किया, all of you are our heroes. You stood out, you took the step towards getting educated, you were firm and sailed all the way despite many hardships. I'm sure all of us have hardships. तो हमें एक पढ़ा लिखा मुआशरा, तालीम याफ्ता मुआशरा, नॉलेज बेस्ड डिसीजंस करने वाला मुआशरा, एक समझने वाला मुआशरा कायम करने के लिए आप सबकी ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सक्सेस विच एक्चुअली मीन्स सक्सेस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल ऑफ आवर सक्सेस रिलाइज ऑन योर सक्सेस। जलसा तकसीम असनाद में सनद वसूल करना हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है। आज आपका ये ख्वाब पूरा हुआ। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार रहें। उसके बाद आपके वालिदैन
اور اساتذہ بھی بجا طور پر آپ کے شکریہ کے مستحق ہیں، جن کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں آج آپ کے لیے ڈگری کا حصول ممکن ہوا۔ میرے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ اس معروف ادارے میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اس ادارے نے نہ صرف پورے ملک میں بلکہ اب دنیا میں اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ I hope and wish and pray کہ کالج now a university continues this legacy اور یہ بہت آگے رفتوں پہ بلندیوں پہ پہنچتا رہے۔ معزز خواتین و حضرات، خواتین میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں جامعہ حاضر کی 68 ایئرز پہ جو محیط خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ جامعہ کی اس تاریخی اور تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پنجاب نے ایئر 2017 میں اسے یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس نوخیز جامعہ کی قیادت کے لیے پروفیسر ڈاکٹر کنول امین جیسی ایک باصلاحیت اور منتظم کا بطور وائس چانسلر انتخاب کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یونیورسٹی ان کی رہنمائی میں ترقی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے جلد ہی تعلیمی حلقوں میں اپنا نیا نام اور مقام پیدا کرے گی۔ Being at helm of affairs of a new institute is quite challenging, I understand that. There are always teething problems. So, Madam Vice Chancellor, I wish you well and assure you that Chancellor's office will always be there to support you in your good endeavors. I'm also happy to note that you have started or activated or firmed up student societies and alumni association. That's all praiseworthy. معزز خواتین و حضرات، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس خواتین کے لیے لاہور میں قائم ہونے والی دوسری سرکاری یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی میں تیزی سے ضرورتوں کے مطابق نئی تعلیمی پروگرامز کا اجرا خوش آئند ہے، تاہم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی اصل اسٹرینتھ ہوم اکنامکس ہے، جس کی وجہ سے اس کو ممتاز مقام ملا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از آلسو نیڈیڈ کہ ہم ڈائیورسیفائی کریں، اپنے پروگرامز کو بڑھائیں۔ لیکن ان ڈوئنگ سو ایز چانسلر آئی آسک یو ٹو کیپ آن فوکسنگ، وچ آئی نو یو آلویز ڈو، بٹ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، اینڈ کیپ آن فوکسنگ آن یور کور اسٹرینتھ which is home economics and which always made this institute proud and stand out. نئے علوم کی تخلیق اور سماجی و معاشی مسائل کا حل تلاش کرنا ایک جامعہ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نئے مضامین میں ڈگریوں کے اجرا سے یونیورسٹی کا تعلیمی دائرہ کار وسیع ہوگا اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو سرکاری سطح پر اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ معزز پارٹیسپینٹس، خواتین پاکستان کی آبادی کا تقریباً نصف ہیں، اور خواتین کی ترقی میں ملک کی ترقی کا راز پنہاں ہے، اور یہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی آبادی کا نصف ہیں تو ہے، بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ ایز ویمن یور رول از of absolute importance. Women نہ صرف پورے گھرانے کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، بلکہ پورے معاشرے میں جو ان کا کلیدی کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین ہی ایک صحت مند اور تیزی سے ترقی کرتے ہوئے معاشرے کی ضمانت ہیں۔ عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق خواتین کو جدید علوم و فنون سے روشناس کرانا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایز چانسلر ابھی ریسنٹلی ہم نے تمام پنجاب کی یونیورسٹیز جو 50 کے قریب سرکاری اور 30 کے قریب نجی شعبہ ہے ان کو اکٹھا کر کے وی ہیو کریٹڈ اے کنسورشیم جس کا
उन्वान है women empowerment and women education, and we have selected some worthy vice chancellors and some faculty members जो मिल के इस चीज़ की तरफ काम करेंगे और हुकूमतों के लिए पॉलिसी के लिए बेहतरी की एक सिमत मुतय्यन करेंगे कि हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स विच इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी तालीम में, ख़वातीन की तालीम में, और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए जो कि माशरे को आगे ले जाने का बहुत ज़रूरी है, उसको कैसे मज़ीद बेहतर किया जाए इंशाअल्लाह। जामियात में होने वाली तहकीक को मुल्की इस्तेमाल में लाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके लिए इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस को फ़रोग़ देना नहायत ज़रूरी है। ताहम इस वक्त पाकिस्तान की सनत और जामियात के दरमियान बदकिस्मती से ताल्लुक़ कमज़ोर है, जिसकी बुनियादी वजह बाहमी राब्तों का फुक़दान है। मैं इस अमर पर भी ज़ोर देना चाहूँगा कि आज इस डिजिटल एज और बिग डेटा के दौर में जामियात को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में जिद्दत को मुतारिफ़ कराने के लिए लाजमी है कि यूनिवर्सिटियों में नए इल्म की तख्लीक के लिए साजगार माहौल मुयस्सर हो। इस सिलसिले में तलबा और असातिज़ा का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। मुझे ये जानकर खुशी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में मुतअद्दिद शोबाजात में तालबात को नए अलूम व फ़नून सिखाए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इदारे से फ़ारिग तहसील तालबात अमली ज़िंदगी में भरपूर हिस्सा लेंगी और मुल्क व मिल्लत की कामयाबी व खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगी। अभी हम जहाँ इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात करते हैं, वहाँ इस बात की भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट और एकेडेमिया की लिंकेजेस हों, ट्रेड और एकेडेमिया की लिंकेजेस हों। हमने स्टूडेंट्स को जामियात ने तैयार करना है कि when they go out of these varsities and these institutes, they should be relevant in the society. और यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा इस तरह का किरदार अदा करना चाहिए कि विन विन सिचुएशन सबके लिए हो। हमारी जो भी विमेन चेंबर्स हैं, विमेन लीडर्स हैं, उनके साथ लिंकेजेस करके और ख़ास तौर पर तमाम किस्म के बिजनेसेस में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ख़वातीन को जदीद उलूम से आरास्ता करना रियासत की जिम्मेदारी है। डिग्री का हसूल तालिब इल्मों के लिए अमली ज़िंदगी के एतबार से अहम है। निसाबी और पेशा वराना तालीम के साथ होम इकनॉमिक्स से ख़वातीन को हम आहंग करना लाजमी है। कामयाबी के हसूल पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की शफ़क़त और उनके अहम किरदार को भी याद रखें। उसके मोतरिफ़ों और उनके हमेशा मशकूर रहें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान लाहौर में कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा किया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमें इकबाल की शायरी पर गौर व खौर करना चाहिए। रमा माह इकबाल की शख्सियत और कलाम के हवाले से मज़ीद प्रोग्राम भी मुरतब करेंगे। इस्लामाबाद में इकबाल डे की मुनासबत से कैलीग्राफी और फोटोग्राफिक नुमाइश से खिताब में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के ज़रिए खुदी का पैगाम दिया, हमें उनके पैगाम को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इकबाल का नौजवान बुलंद ख्याल रखने वाला और अपनी दुनिया खुद तख्लीक करने वाला है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हमने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद को अहम जाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर का दौरा किया, जहां उन्होंने मुल्क की दिफा और अमन के लिए जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत पेश करते हुए यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए। पेशावर कोर के अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए फॉर्मेशन की काविशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर कबायली अजला में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए साजगार और महफूज माहौल की फराहमी शुहदा की कुर्बानियों की बरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि अफसर और जवान हमेशा अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज रखें। पाकिस्तान की सालमियत हमारी ज़िंदगी है। वतन की मिट्टी पर अपनी जानें निछावर करने वाले बहादुरों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद किया गया। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में होने वाली रैली योब नोश की बेला और सोबतपुर में निकाली गई। शुरका ने सिक्योरिटी इदारों से मोहब्बत और इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फोर्सेस के हक में नारे दर्ज थे। शुरका ने इस मौके पर फोर्सेस के अमन कायम करने और रिलीफ के कामों में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आलम इस्लाम के तमाम दुश्मन भारत के साथ मिलकर हमारी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी इदारों को
सियासी मामलात में घसीटना अफसोसनाक अमल है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में निकाली गई रैलियों में मुख्तलिफ कबाइल के अफराद ने पाक फौज से मोहब्बत का पुरजोश इजहार किया। शुरका ने कहा कि फौज ने बलूचिस्तान के दिफा के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च में फौज को बदनाम करना किसी सूरत मंजूर नहीं। तमाम बलूचिस्तान पाक फौज के साथ है और किसी सियासत का हिस्सा नहीं। दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्क और वतन के साथ अच्छे बुरे हालात में मौजूद रहे हैं। हाल ही में भारतीय मीडिया की जानिब से वावेला किया गया, जिसका भरपूर जवाब ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से अपनी फौज के हक में रैलियां निकाल कर दिया गया। इस दौरान शुरका की जानिब से पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पुर्तगाल और स्पेन में EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्लेटफॉर्म तले कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद ने तकरीबात में शिरकत की और पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के इदारों के साथ यकजहती का इजहार किया। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान एम्बेसी के ताउन से पैगाम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का मकसद ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के इत्तेहाद को फरोग देना है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, शोहदाए पाक अफवाज के लिए दुआ की गई। तकरीब में कहा गया कि पाकिस्तान आलमी दुनिया में अपनी अमन पसंदी का पैगाम पहुंचा रहा है। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियों का सिलसिला जारी है। जेहलम के शहरियों ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद रैली मशीन मोहल्ला से शानदार चौक तक निकाली। रैली में शहरियों ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने कहा कि पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां देकर मुल्की दिफा को यकीनी बनाया। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। रैली में बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहर रहमान ने शर्म अल शेख में COP27 में पाकिस्तान पवेलियन में द लॉस एंड द डैमेज के उन्वान से मुनाकिदा तकरीब के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बहरान से निमटने का वक्त आ गया है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के आज़म का इयादा करना होगा, वरना तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों के नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हम आलमी प्लेटफॉर्म पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब और खुश्क साली से खित्ते को $215 बिलियन का नुकसान हो सकता है। हकीकत यह है कि आबो हवा की कोई सरहद नहीं होती, इसके लिए सरहदों के पार ताआवुन को मुसलसल मजबूत करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज असद महमूद ने मुल्क भर के तमाम डाकियों को मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है। पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद के डाकियों को आज मोटरसाइकिल्स फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद कहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आमदरफ्त की सहूलियात से डाकियों की कारकर्दगी मज़ीद तेज़, मौसर और बेहतर होगी। भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में अहम हिंदुत्व रहनुमाओं की बर्रियत के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ओमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी, कल्याण सिंह और दीगर सरकर्दा हिंदुत्वा शख्सियात की बर्रियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने 31 अक्टूबर को CBI की खुसूसी अदालत की तरफ से हिंदुत्वा सियासतदानों को बरी किए जाने के खिलाफ अयोध्या के 2 मुसलमानों की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज किया था। अपील में दावा किया गया था कि वो मुतासरीन के साथ साथ गवाह भी थे जिनके सामने हिंदुत्वा रहनुमाओं ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया था। 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला करके मिसमार कर दिया था, जिसके बाद भारत भर में मुस्लिम मुखालिफ फसादात शुरू हो गए थे, जिनमें तकरीबन 2000 लोग मारे गए थे, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी पसंद तंजीमों ने कश्मीरी अवाम पर जोर दिया है कि वो BJP हुकूमत के मकामी आलाकारों पर कड़ी नज़र रखें जो इलाके में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदुत्वा एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। KMS के मुताबिक जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, पीपल्स लीग, मुस्लिम लीग, तहरीक हुर्रियत और डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा कि किसी भी फर्द या गिरोह को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के हुसूल के लिए दी गई बेमिसाल कुर्बानियों को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत ने ज़राअत के शोबे में ताउन के नाम पर मुतनाज़ इलाक़े मकबूजा जम्मू कश्मीर में इजराइल को मुकम्मल रसाई दी है। सेहूनी हुकूमत ने भारत इजराइल ज़रई मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर मकबूजा इलाके में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का फैसला किया है।
ادھر ویانا میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام پیغام پاکستان تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ویانا میں پاکستان کے سفیر آفتاب احمد کھوکھر نے کہا کہ ہمیں اسلام کے حقیقی پیغام کو امن کے مذہب کے طور پر اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ سفیر پاکستان نے کمیونٹی کے افراد کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور پاک فوج کے شہیدوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب میں آسٹریا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی اہداف کے تحت پاکستان 2030 تک مختلف شعبوں میں 169 پروگرامز پر کام کر رہا ہے، جس کا مرکزی نقطہ غربت کا خاتمہ ہے۔ وقار حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی کا شکار پاکستان بیرونی امداد سے زیادہ سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پائیدار ترقی نے تباہل پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے گا۔ UNDP کی عہدیدار امارہ درانی کہتی ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے IMF سمیت دیگر سرمایہ کاروں کو اکٹھا کیا ہے۔ جو ہمارے پاس ایڈ آتی ہے یا جو قرضے آتے ہیں وہ بھی اتنے وسائل ہمارے لیے نہیں چھوڑتے کہ پاکستانی حکومت بہترین طریقے سے پاکستانی قوم کی ترقی کے لیے فلی انویسٹمنٹ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو سرمایہ کار جو طبقہ ہے، وہ بھی اس مشن میں آئے۔ UNDP کے سینئر ٹیکنیکل مشیر ہارون شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک سیلابی صورتحال سے دوچار ہے اور اس صورتحال میں ترقی کے اہداف پورے نہیں کر سکتا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کے کاروبار ضائع ہو گئے ہیں، جن کے گھر بہہ گئے ہیں، ان کی ریکنسٹرکشن کا عمل ایک تو اچھا کیا جائے کہ آئندہ سیلاب آئے تو مضبوط ہو، دوسرا ان کو روزگار کمانے کے لیے مواقع دیے جائیں تاکہ اگر وہ بینک وغیرہ سے بھی قرضہ لے سکیں اور اپنا کاروبار چلا سکیں۔ تقریب میں شریک سیکرٹری فنانس حامد یعقوب شیخ نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے 5 بینکوں کا ایک کنسورشیم بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام کے تحت سال 2030 تک اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے کوشاں ہے اور پاکستان کی ترقی کے حصول کے لیے مختلف پروگرامز اور سیکٹرز میں کام کر رہا ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، ٹھٹھا میں 1.5 لاکھ متاثرین کی بحالی کا عمل تو مکمل ہو گیا ہے، مگر سروے ٹیمیں متاثرین کے گھروں تک نہ پہنچنے اور معاوضہ نہ ملنے سے متاثرین سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا حسن بیگ سے۔ ٹھٹھا میں سیلاب متاثرین کا بحالی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 1.5 لاکھ متاثرین جو ٹھٹھے کے مختلف علاقوں سے امدادی کیمپوں میں اور بندوں پہ مقیم تھے، وہ واپس اپنے گھروں پہ جا چکے ہیں، لیکن شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ان کو ابھی نہ تک ٹینٹ پہنچ سکے ہیں اور آدھی زیادہ ایسی جگہ جہاں ان کو ابھی تک راشن نہیں دیا گیا ہے۔ ضلعی حکومت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سروے شروع کیا جائے گا اور سروے کے بعد ان کو گھروں پہ جہاں گھر نہیں بن سکے ان کو کیمپ دیے جائیں گے، اس کے علاوہ ان کو راشن مہیا کیا جائے گا، لیکن آدھی جگہ ایسی رہ گئی جہاں ابھی تک نہ راشن دیا گیا نہ کیمپ دیا گیا، لوگ کھلے آسمان کی طرح بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ واپس آئے اپنے وہی جھوپڑی گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی تک ہمیں راشن واشن کچھ نہیں ملا ہوا ہے۔ غریب آدمی ہے، کیمپوں میں بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں ملا ہم لوگ کو، سمجھے ادھر بھی آئے ہیں تو ادھر بھی جگہ وگہ ساری گری ہوئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک سروے ٹیمیں جو وفاقی حکومت کی طرف سے مقرر کی تھیں وہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، سردی شروع ہو گئی ہے اور ہمارے بچے جو ہے شدید بیماری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ صبح ہی صلاحکار جو ہیں وزیر اعلیٰ کے صادق محمد نے اعلان کیا تھا کہ فی گھر 5 لاکھ روپے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے نقصانات ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ جو بھی گھر ان کے ڈیمیج ہوئے ہیں اور ان کا جو بھی نقصان ہوا اس کا سروے کر کے وفاقی حکومت کی طرف سے 5 لاکھ کا اعلان کیا گیا گھروں کا، اس کے بعد ان کو بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی 25-25 ہزار روپے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر ٹھٹھا سے پوچھا گیا سروے ٹیموں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک پلان دیا ہے جس کے تحت وہ مختلف جگہ جا رہی ہیں۔ جہاں گاؤں ہے وہاں پہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک تو وہ جو مکان ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس بعد بندے کا فوٹو اور اس کے علاوہ شناخت کارڈ دیکھنا ہے، تو ہم اس کو کلوز مانیٹر کر رہے ہیں۔ سردی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے سروے کا پلان جاری کیا ہے، سروے مکمل کر کے ہمیں اس کا معاوضہ دیا جائے۔ اور ناظرین، کسانوں کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے تاریخی پیکج پر صنعت کاروں نے بھی اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ طاہر کلاسرا کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک کی مجموعی پیداوار میں زرعی شعبے کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، تاہم صنعتی ترقی میں بھی زراعت کو خصوصی اہمیت ہے۔ ملک کی مجموعی برآمدات میں زراعت کا حصہ 70% سے زائد ہے، جس کا 60% پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی شعبہ ٹیکسٹائل، چمڑے،
खुर्दनी तेल, चावल और फूड प्रोसेसिंग समेत मुतअद्दिद सनतों को खाम माल मुहैया करने का भी जरिया है। यही वजह है वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से काश्तकारों की तरक्की के लिए किसान पैकेज पर सनतकारों ने भी खुशी का इजहार किया है। एग्रीकल्चर के लिए जो कि पिछले 75 साल से इग्नोर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हम वज़ीर आज़म साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने ये पैकेज दिया। सनतकारों का कहना है कि किसानों के लिए 1800 अरब रुपए के ज़राई कर्जे, DAP खाद की कीमत में कमी, यूरिया पर सब्सिडी जैसे किसान दोस्त फैसलों से ज़राई पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा, जिसके सनत पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पे ज़्यादा काम हो ताकि नौजवान पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार के वसीम मौके पेश आ सकें। एग्रीकल्चर जो कि मेन आपकी बैकबोन है, उसके ऊपर बहुत काम की ज़रूरत है। गैर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक इंशाल्लाह पब्लिकेशन इसके ऊपर कर रही है कि एग्रीकल्चर को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला होना आने वाले सालों में। तो ये चीज़ें चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। वज़ीर आज़म के किसान पैकेज में सैलाबज़दा इलाकों में बलासूद कर्जे, गंदम की बीज की फराहमी से न सिर्फ मुतासिरीन की मुआशी बहाली में मदद मिलेगी, बल्कि उन इलाकों में मौजूद सनतों को बर वक्त खाम माल की फराहमी भी यकीनी होगी। ज़राअत और सनत का आपस में चोली दामन का साथ है। वज़ीर आज़म के तारीखी पैकेज से सनती तरक्की की नई राहें खुलेंगी। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसको दूसरे मसाइल के साथ पानी की कमी का मसला भी दरपेश है। पानी के बेजा इस्तेमाल को रोकने के साथ साथ आबपाशी निज़ाम और वाटर पॉलिसी का भी असर नो जायजा लेने की ज़रूरत है। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। आबादी में इजाफे की वजह से दुनिया भर में पानी की तलब भी बढ़ रही है। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए ज़राई शोबे में कम पानी इस्तेमाल करते हुए ज्यादा पैदावार के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल करना होंगे, जिनसे 80 से 90% पानी की बचत हो सकती है। नहरी निज़ाम जब बनाया गया था, आज से 100 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया उसको, लेकिन उसमें जदीद जो इख्तरा करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। अब वक्त आ गया है कि हम अपने नहरी निज़ाम को बेहतर करें, उसको अपग्रेड करें और उसको पायदार तरक्की के असूलों के मुताबिक डेवलप करें। We are exploring on the water resources, alternative water resources for the agriculture, especially on the rural development area. पानी का बचाव है, उसके इस्तेमाल में जो सिटीजनशिप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदाराना इसका इस्तेमाल है, उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात की वजह से पानी और खुराक की दस्तयाबी समेत कई मसाइल बढ़ रहे हैं, इसलिए पानी के इस्तेमाल के हवाले से मौसर पॉलिसी अपनाने और आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। रिसेंट फ्लड्स हैं, इस पर मज़ीद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमें वाटर स्टोरेज की कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़रूरत भी है। इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा इस तरह से उजागर करवाते हैं। पानी जहाँ भी हमें मिल सके उसको टैप करें, उसको स्टोर करें और उसको बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि जिनको ज़रूरत है जिस इलाके में वहाँ पानी पहुँचा सकें। आबपाशी के निज़ाम और पानी के इंतज़ाम के हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली तरबीती वर्कशॉप में पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों के माहिरीन ने शिरकत की। ज़राअत समेत तमाम शोबों में पानी के इस्तेमाल और इंतज़ाम को बेहतर बनाना होगा ताकि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के बाद दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब की यात्रा के लिए हसन अब्दाल पहुंच गए। पड़ोसी मुल्क भारत से आए 2400 सिख यात्रियों को खुसूसी ट्रेनों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचाया गया है, जहां पर इंतजामिया की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। सिख यात्री हसन अब्दाल में अपने 3 रोज़ा क़याम के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। इस मौके पर यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिख यात्री 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात में शिरकत के बाद 11 नवंबर को लाहौर रवाना हो जाएंगे। और नाज़रीन, लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा दिखाई दे रहा है। महकमा सेहत के पंजाब की जानिब से सूबे भर में डेंगू का लार्वा तल्फ करने और अफसाइश को रोकने के लिए मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद हयात से कि शहर में डेंगू की क्या सूरत हाल है। जी नवीद हयात। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है सुबह भर से डेंगू के 126 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से गुज़श्ता रोज़ 64 मरीज़, जबकि रावलपिंडी से 24 और गुजरांवाला से 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा अटक, साहिवाल और रहीम यारहान, मियांवाली से सिर्फ एक केस जो है वो सामने आए हैं। रवां साल के दौरान अगर बात की जाए लाहौर से, तो लाहौर से डेंगू के कुल 7196 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे। इस वक्त
वक्त सुबह भर में 870 मरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि लाहौर की बात की जाए तो 424 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से कोई भी हलाकत जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। अगर बात की जाए महकमा सेहत की, तो महकमा सेहत जो है वो डेंगू की अफजाइश और इस लार्वे की अफजाइश को रोकने के लिए तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। मुख्तलिफ घरों की और मुख्तलिफ मकामात जहाँ पर इसकी अफजाइश मुमकिन हो सकती है उसको चेक किया जा रहा है और उसकी जो अफजाइश है उसको काबू पाने के लिए जो है तमाम कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। उन्होंने महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको साफ़ रखा जाए ताकि इस बीमारी से जो है वो महफूज रहा जा सके। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि हमारा मुल्क सलामती के हवाले से बेयकीनी से दो चार है, जिसके लिए हमें अपनी फौज की सलाहियतों को बढ़ाने और उन्हें जंग के लिए तैयार रखने की ज़रूरत है। चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने मरकजी अस्करी कमीशन का दौरा किया। चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि हमारी फौज को इस वक्त कठिन जिम्मेदारियों का सामना है, जिसके लिए हमें अपनी तमाम तर तवज्जो फौज की जंगी सलाहियतों को बढ़ाने और उन्हें जंग के लिए तैयार रखने की ज़रूरत है। फौजी वर्दी में मलबूस चीनी सदर ने कहा कि साल 2027 तक हमें अपनी फौज को दुनिया की बेहतरीन अस्करी सलाहियतों की हामिल फौज बनाना होगा, जिसके लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह कालाम -3, बाबूसर -2, ज़ियारत -1 और स्कर्दू में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।